Yes, dear students, I am Dr. Suren from Care Institute of Commerce, teaching you a very important topic of goodwill, how to calculate the goodwill under different methods. Question number 2. See this question number, page 2.31. 2.31. आपको 5 सालों का प्रॉफिट दिया है 2020, 21, 22, 23 and 24. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4-year purchase of 5-year average profit. 4-year purchase का मतलब 4 से मल्टीपल करो, 5-year एवरेज का मतलब 5 सालों के प्रॉफिट को एवरेज करो. So this average profit equal to average profit equal to अब 5 सालों के प्रॉफिट को प्लस करिए 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,35,000 प्लस 5 लाख. 5 सालों का प्रॉफिट है, डिवाइड 5 से कर दीजिए. This amount is rupees 21,93,000 divided by 5 is equal to 5,4 lakh, 5,3 lakh, 5,8 lakh, 5,6 lakh. This is 4,38,600. Average profit of the 4 years should multiply it by 4. 4 year purchase का मतलब 4 साल से मल्टीपल बाय. तो goodwill of the firm equal to average profit into number of years of purchase. Average profit 4,38,600 into number of years of purchase 4. This amount to 17,54,400. This is the answer. See this question number 3. Here in this question, the important line is, he says second line में देखिए, for this purpose, the goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 year or 5 years, whichever is higher. So you have to make profit average 4-year basis or the 5-year basis, and to choose the figure whichever is higher. आपने 4 सालों के प्रॉफिट को भी एवरेज करना है, 5 सालों के प्रॉफिट को भी एवरेज करना है, फिर उनमें से जो बड़ी फिगर होगी उस एवरेज फिगर को सिलेक्ट करना है और लास्टली उसको मल्टीपल कर देना है 4 टाइम्स, यानी कि 4 से मल्टीपल कर देना है. तो एवरेज प्रॉफिट of previous 4 years. Previous 4 years का मतलब एंड वाले सालों से गिनिए 2024, 23, 22 and 21. So this is 15,500 plus 10,000 plus 16,000 plus 15,000 divided by 4. This amount to 56,000. 56,500 divided by 4. 14,125. Now, average profit. This is part A. Average profit of previous 5 years. Equal to, अब आप 500 सालों को ले लीजिए
14,000 plus 15,500 plus 10,000 plus 16,000 plus 15,000 divided by 5. तो ये 4 साल तो हमने पहले ही करे थे 56,500, इसमें भी ऐड हो जाएगा, ये आएगा 70,500 divided by 5. This is 5 1 2 5 4 5 1 14,100. This is part B. He says you have to make the profit average of previous 4 years or the previous 5 years. तो हमने दोनों को एवरेज करा, 4 years को भी और 5 years को भी, एंड विच एवरेज हायर, तो इन दोनों में से हायर फिगर दिया, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट which average higher, this is A 14,125. Now goodwill of the firm, average profit into 4 times 14,125 into 4. This is 56,500. This is your last. Question number 8. ये इनसे खास क्यों बनता है? इसमें एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट यानी कि इसमें कुछ एबनॉर्मल लॉसेस हैं, कुछ एबनॉर्मल गेन है। तो जो लॉसेस उन्होंने एबनॉर्मल प्रॉफिट में से लेस करके प्रॉफिट को कम कर दिया था वो ऐड हो जाएंगे, और जो एबनॉर्मल गेन उन्होंने लिए थे यानी कि उन्होंने गेन को लेके प्रॉफिट को बढ़ा दिया था उसको लेस कर देंगे। उसका कारण ये है कि एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन बिजनेस के रूटीन के ना तो प्रॉफिट होते हैं ना लॉस होते हैं, सो इनको रिवर्स करना, हमें रिवर्स करेंगे तो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट को हम एवरेज करेंगे और नंबर ऑफ ईयर अप्रोचेज से मल्टीपल कर देंगे। सो आप इसका एक टेबल बना लीजिए, ईयर एंडेड गिवन प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टेड प्रॉफिट। This is year ended 31st March 2021. The given profit is 80,000. 31st March 2022. The given profit is 1,35,000. 2023. The given profit is 1,60,000. 2024, the given profit is 2 lakh. Now see the adjustment below. Adjustment क्या है? Abnormal loss of 20,000 by debited to profit and loss account. Ended on year ended on 31st March. यानी कि इस साल में उन्होंने एबनॉर्मल लॉस को लेस करने के बाद ये प्रॉफिट निकाला है, आपको उसके पहले का निकालना है, तो ऐड कर दीजिए, ऐड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस है 20,000। जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस से पहले का 1 लाख हो जाएगा। और दूसरे साल में फिक्स एसेट बस सोल्ड ईयर एंडिंग 31st मार्च एंड द गेन ₹25,000 बाय क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो गेन उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया था अब लेस कर दीजिए, लेस एबनॉर्मल गेन। दिस इज 25,000, तो आप इसमें से 25,000 माइनस कर दीजिए, दिस अमाउंट टू 1,20,000। थर्ड, इन द ईयर एंडेड 31st March 2023, assets of the firm were not insured. Assets insured नहीं थे ड्यू टू ओवरसाइट, गलती से रह गए,
इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पे, सो इंश्योरेंस प्रीमियम ये अलाउड एक्सपेंस, ये अलाउ हो जाएगा लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। जो उन्होंने गलती से छोड़ दिए थे इसको लो कर दीजिए। और फोर्थ ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप इसमें से इसको माइनस करें, जाएगा 1,35,000 और ये 2 लाख का 2 लाख आ जाएगा। नाउ टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, adjusted profit this is 5,65,000, 5,65,000 average adjusted profit equal to 5,65,000, 4 सालों का प्रॉफिट है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। This is 1,41,250. No goodwill of the firm. Adjusted average profit. Into number of year purchase. देखिए कितने सालों का परचेज दिया है। 2 years. Number of year purchase. This is 1,41,250. This is 2,82,250. Second method is super profit method. सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है आपका बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है और उसी तरह के बाकी लोग जो बिजनेस करते हैं उनका नॉर्मल प्रॉफिट उससे कम है, तो आपका उनके नॉर्मल से ज़्यादा है। योर प्रॉफिट विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। देखिए कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ ओरिजिन वी नो दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी तरह से जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड अनयूज कैपिटल एंड यूज कैपिटल, दिस अमाउंट टू 10 lakh। ये दोनों पार्टनर का कैपिटल है कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। इसी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मार्केट में इस तरह के काम करने वाले लोग नॉर्मल रेट वो कमाते हैं 15% एनुअल। 15%। सो आपका नॉर्मल रिटर्न निकल आएगा, नॉर्मल रिटर्न और प्रॉफिट ये निकल आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। यानी कि जिन लोगों ने 10 लाख का कैपिटल लगाया था उनका नॉर्मल रिटर्न 15% है, तो साल में कितना पैसा कमा लेंगे 15 लाख इंटू 10%, दिस अमाउंट टू 1,50,000। ये एनुअल इतना कमाएंगे। अब एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स 60,000, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। जो बिजनेस एक्चुअल में चल रहा है उसका पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया है, तो आप उसको एवरेज कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 3 lakh प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 divided by 3. This is 10,80,000 divided by 3.
3,60,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। जो एक्चुअल में बिजनेस है आपका, उसका एवरेज प्रॉफिट 3,60,000 है, और उनमें पार्टनर का सैलरी भी है, तो पार्टनर का सैलरी है 60,000 ईच। तो लिखेंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स सैलरी। दिस इज 3,60,000 माइनस दोनों पार्टनर का सैलरी है 60,000 ईच, तो दो पार्टनर हैं, 2 into 60,000। दिस इज 3,60,000 माइनस 1,20,000, इसी 2,30,000। अब जो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एवरेज प्रॉफिट 3,60,000 है, और सैलरी पार्टनर को देने के बाद उसका मेंटेनेबल प्रॉफिट 2,40,000 है। जबकि उसी तरह के जो बाकी बिजनेस हैं वो नॉर्मल 15% कमाते हैं, तो वो 1.5 लाख कमाते हैं। अब हमारा बिजनेस उनसे कितना कमा रहा है ज्यादा, वो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज एवरेज मेंटेनेबल 2,30,000, और उसी तरह का बिजनेस अगर लोग उस पे जो कमा रहे हैं वो 1,50,000 है। सुपर प्रॉफिट 90,000, यानी कि हमारा जो बिजनेस जो एक्चुअल में चल रहा है उसका प्रॉफिट दूसरों की तुलना में 90,000 पर ईयर ज्यादा है। बस इसी से गुडविल निकल जाएगा। देखिए क्या कहा उसने, कितने ईयर का गुडविल परचेज ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर ऑफ प्रॉफिट। तो गुडविल आफ्टर फॉर्म इक्वल टू गुडविल आफ्टर फॉर्म इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of year of purchase, years of purchase। क्वेश्चन में देखिए कितने सालों का परचेज दिया है। दिस इज सुपर प्रॉफिट 90,000, ईयर ऑफ परचेज 2 ईयर परचेज, इस अमाउंट को 1,80,000। ये क्वेश्चन आया है CBSE 2019 में। क्वेश्चन 11 is 2.33 CBSE 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। यह आया है CBSE 2023 में। A and B are partners in a firm sharing profits equally. The capital of A and B 1,20,000 और 80,000, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो आपको बता दिया है, अगर आप दोनों के कैपिटल को प्लस करें तो कैपिटल इम्प्लाइड आ जाएगा, और नॉर्मल रेट दिया 20%, उसे मल्टीपल करें तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर 3 सालों का प्रॉफिट दिया है, उसको एवरेज कर लें तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज और नॉर्मल का कंपैरिजन करें तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। बस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीपल करें तो गुडविल आ जाएगा। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ईच कैपिटल, दोनों को कैपिटल को प्लस कर प्लस बीच कैपिटल। ए का कैपिटल है 1,20,000 और बी का कैपिटल 80,000, कुल मिला के कैपिटल हो जाएगा 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड
into normal rate upon 100. This is capital employed 2 lakh. नॉर्मल रेट उसने दिया 20%, 20% से मल्टीपल करें, दिस इज 40,000. अब जो बिजनेस चल रहा है उसने उसका 3 सालों में प्रॉफिट दिया, उसको एवरेज कर दी. एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आएगा 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000, तीनों को प्लस करें, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू इसी 1,02,000 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 34,000. ये जो एवरेज ग्राफ. अब आपके पास एवरेज भी है और नॉर्मल भी है, तो सुपर निकल आएगा. इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका एवरेज कम और नॉर्मल ज्यादा है, यानी कि सुपर प्रॉफिट है ही नहीं इसमें, रिटर्न इसका नेगेटिव है, तो इसका गुडविल आएगा इसका. सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज आपका आ रहा है 34,000 और नॉर्मल आ रहा है 40,000. सुपर प्रॉफिट इक्वल टू नेगेटिव 6,000. सिंस द सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, सिंस द सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, hence there will be no goodwill.